दिस इज नॉर्मल कंडीशन गाइस, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशंस में जो ओशन करंट्स की मूवमेंट है, ठीक है, ये उसको हमें बता रहा है। एंड इफ यू कैन सी द नॉर्मल कंडीशन, दिस इज योर साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट एंड द कंट्रीज हियर आर पेरू, चिले, पेरू एंड चिले, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, थोड़ा दिमाग में रखो। एंड हियर वी हैव इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है। एंड कैन यू clearly see the ocean current here is cold ocean current, that is Peru. Peru is a cold ocean current guys, okay. And towards your this region जो Indian Ocean और towards the west eastern Asian coast है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहां पे जो ओशन करंट है that is your warm ocean current. This is the normal condition guys. ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल है। what happens, ठीक है, the normal condition guys कि पैसिफिक ओशन में what happens in Pacific Ocean is that your warm water जो है, because the way the winds blow, कहता जिस जैसा हमारी जो winds blow करती हैं prevailing wind system में, the way our winds blow guys, okay, the way our winds blow, I hope थोड़ा सा याद हो आप लोगों को। This is equator guys, this is your Tropic of Cancer, this is Capricorn, and the winds, the way the winds were blowing is, ये था winds का direction, okay, they were easterlies guys, easterlies थी, they are blowing like this, okay. So what will be the direction of the ocean currents? वो भी आपका east to west की तरफ travel करेंगे, ठीक है, from America to your Asia travel कर रहे हैं। and what they will do is, अब रिमेंबर इक्वेटर पे बिकॉज ऑफ इंसुलेशन, इक्वेटर पे ज्यादा इंसुलेशन की वजह से, हीटिंग अप की वजह से, जो गर्म पानी है, द हीटेड वाटर, द वार्म वाटर्स, इट विल मूव फ्रॉम द अमेरिकाज टूवर्ड्स योर, इट बिकम्स, कई बार ऐसा होता है ना कि मैं अगर ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट बोलूंगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो व्हाट आई विल रेफर टू हियर इज अमेरिका एंड योर एशियन पार्ट, ओके, या ऑस्ट्रेलिया। सो साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया, विल यूज दैट वोकैब हियर। वाटर साउथ अमेरिका से तो विंड के साथ ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स योर ऑस्ट्रेलिया, एंड द वार्म वाटर विल पाइल अप इन ऑस्ट्रेलिया गाइस। ये जनरल कंडीशन है गाइस। अगर वार्म वाटर सारा ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ गया, इफ ऑल द वार्म वाटर कम्स टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, ऑल द वार्म वाटर इज कमिंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, व्हाट दैट मींस इज, warm water towards Australia means there will be rainfall in Australia and your Indonesia, Malaysia, इस तरफ। क्यों? गर्म पानी, more precipitation, more moisture in air, more rainfall in that area. And what normal condition, and what does that mean, what this means to conditions in South America? South America condition normal मतलब desert, whereas दुनिया का एक सबसे शुष्क dry desert in the world is Atacama, okay, one of the most driest places guys on your earth is Atacama guys, Atacama desert, Atacama guys, okay, Atacama guys, ये एक driest place on earth है, and here is Atacama guys. Atacama जो है, it's in your South America में है, driest place है, चिले में है, और guys माना जाता है यहाँ पर पिछले 25 साल में, 25 years में ओनली 4 सेंटीमीटर बारिश हुई है एटेकामा में। एक्चुअली डेजर्ट की जो डेफिनेशन है, डेजर्ट की एक टेक्निकल डेफिनेशन है, डेजर्ट उस किसी भी इलाके को कहा जाता है जिसमें सालाना बारिश 25 सेंटीमीटर से कम हो। अगर कहीं पर भी देखिए, डेजर्ट का कोई कनेक्शन टेम्परेचर से नहीं होता है, इट हैज नथिंग टू डू विद टेम्परेचर। डेजर्ट्स का सीधा सीधा मतलब है 25 एनुअल रेनफॉल, annual precipitation rainfall less than 25 centimeters, that is a desert. Leh Ladakh, it's a desert guys, okay. Your Kargil, your Leh Ladakh is a cold desert for that matter. Thar in India जो हमारा है वो एक hot desert है, Atacama is again a hot desert. तो desert का temperature से connection नहीं है। Gobi is a cold desert guys, Antarctica is a cold desert for that matter. तो desert का connection temperature से नहीं है, desert का जो connection है that is with your precipitation guys, annual precipitation. अब ये normally this is the condition guys, यहाँ पर the conditions are dry, ठीक है, यहाँ पर जो conditions हैं towards your Atacama desert, South America, it is dry, and towards your Australia they are wet guys. Wet conditions means precipitation होती है, बारिश होती है, ये normal condition है guys. But what happens during El Nino
event. Now that warm water, look at the warm water guys, this warm water now it has sloshed back, means ये जो गर्म पानी है ये वापस चला गया. Actually वापस क्या चला गया, ये जहां था वहीं रह गया. Remember this warm water started from the equatorial region in South America. It was winds जो इस गर्म पानी को यहाँ से push कर रही थी towards. What was winds doing? Winds were pushing this water from the western coast of South America to the eastern coast of Australia push कर रही थी. लेकिन अगर winds weak होगी तो what will happen? Winds weak होती हैं तो simple सी बात है, ये गर्म पानी जो है towards South America pile up करेगा, ये वहां पर pile up करेगा. Pile up करेगा तो मतलब यहाँ पर what will happen to the water condition here? वो गर्म पानी यहाँ नहीं पहुंचेगा तो यहाँ पर पानी ठंडा और यहाँ पर पानी, the water here will become cold and the water here becomes hot. So if the water in South America becomes on the western coast of South America, अगर पानी गर्म होता है तो that means जो Atacama desert है यहाँ पर, which is the driest place on earth, it will have rainfall guys. It will have rainfall. It will have piling up of hot water here. Okay, and this region will have desert like conditions. यानी कि पहली just remember the first line of this documentary, that was the conditions which cause drought over Indonesia and extreme rainfall and snowfall conditions over Atacama, over South America regions is caused by same condition. Same condition kya guys? This El Nino La Nina event. That is आपका जो पानी, the water which was moving towards the Australian part, it sloshes back, it basically stays back from where it should have started. And जब पानी यहाँ गर्म हो गया, warm water is here, more precipitation, more evaporation in the atmosphere, more precipitation, that means rainfall here guys, and that means dry conditions here. This is El Nino guys. This event is called El Nino event. क्या कहते हैं इसको? El Nino event. So this triggers as an atmospheric event. इसकी शुरुआत होती है as an atmospheric event. It slowly turns into, from atmospheric event, it will slowly turn into a oceanic event. Ocean currents, and from oceanic event it's again slowly turns into a climatic event, a weather phenomena, that is change in the weather pattern, change in the rainfall and drought conditions. Reverse कर देता है ये उसको. Although the pebble is at one little place, but the ripples can be seen all across the Atlantic and Pacific guys. Now look at this diagram. This diagram guys. अब ये जो इवेंट है guys, this event is triggered where? ये जो इवेंट है it actually is triggered here. स्टार्ट ये यहाँ होता है with an atmospheric event. नॉर्मली क्या था? नॉर्मली तो यहाँ का गर्म पानी जो है it goes here into, ये स्टार्ट करता है आपका पैसिफिक से, but it reaches till your Indian Ocean. ये Indian Ocean तक आता है. Recently this question was there in exam guys. Indian dipole. What is Indian dipole? ये सब connected है. Ocean waters are all connected. अगर पानी में यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो it all ends up to other parts of the world. कहता अगर आपने एक पेबल एक रिवर में फेंका, एक स्टोन रिवर में फेंका तो रिपल्स जो है वो हर जगह जाएंगे. वही चीज यहाँ पर है गाइस. एक स्मॉल कंडीशन जो डिसरप्ट होती है यहाँ पर, दैट कॉजेज द वाटर नॉट, वो क्या करता है, वो पानी को आगे नहीं लेकर जाता है टुवर्ड्स दी ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन ओशन पार्ट. जब यहाँ पर पानी जो है गर्म पानी नहीं पहुंचता है तो व्हाट हैपेंस इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन दिस रीजन, इंडियन ओशन में जो पानी का टेम्परेचर है दैट वुड ड्रॉप. एंड साउथ अमेरिका में, ईस्टर्न पैसिफिक में, वेस्टर्न साउथ अमेरिकन जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पर पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इंडियन ओशन में पानी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा. तो व्हाट दैट मीन्स इज दिस एंटायर रीजन विल हैव ड्रॉट लाइक कंडीशंस एंड दिस रीजन विल हैव rainfall. Normally what is the condition? This is a drought region, this is a rainfall region. But adverse conditions mein, when the El Nino is there, this condition gets drought and this region gets your rainfall guys. Reverse ho gaya. And interestingly guys, ye jo El Nino event hai, it's not just limited to your Indian Ocean and Pacific. Not just Pacific, Indian Ocean is also connected, and इसके जो repercussions हैं, they are also felt in Atlantic Ocean also.
Okay. It was named by Peruvians, guys. Peru ke log the. The Peruvians who have named it for the first time. Okay, the Peru. It's a Peruvian word. Guys, number one, it occurs during the winter season and December, January, February ke dauran aata hai. And it is the Christmas time during that period. Okay. Now, do you know the meaning of El Nino? Anybody? सर ये स्पेनिश वर्ड है सर इसका मतलब बॉय बॉय होता है सर इसका मतलब शायद Yeah, correct, Savina. Very nice. Excellent. ये it is related to Christ child. Jesus Christ का बेटा बोलते हैं. ये with all no offense, the Christ child, the boy child is bringing rain. ये वो बोलते हैं, मैं नहीं बोलता. Highly discriminatory. I think the female should bring the rain. They are the mother of rain. Okay, but here, according to Peruvian customs religion, the boy child will bring rain. El Nino. What will be its impact on fishing, guys? What will be its impact on fishing in this region? And why? I want to know the answer today. Normally, यहाँ fishing होती है. This region, will it have fishing normally? No, sir. This region has fishing, interestingly. This region has fishing. Why there is fishing in this region? Anyone? I told you yesterday. It was there in yesterday's lecture. Come on, guys. Fishing क्यों होती है? Sir, meeting of hot and cold water. Okay, what will happen जब ये अब remember guys, देखो इस region में what is happening? जो यहाँ पानी था, hot water, that is moving forward. वो आगे जा रहा है with prevailing wind system. जो यहाँ winds थी, वो इस पानी को आगे लेके जा रही हैं. हालांकि यहाँ पर although जो यहाँ पर continental shelf है, that is not very broad, ज़्यादा broad नहीं है, but still, okay, water is being pushed forward. What will happen अगर पानी यहाँ से आगे जा रहा है? What will happen? What will happen? Water replace होगा sir. I need exact word नरेंद्र. मुझे exact word चाहिए. Upwelling, guys. Upwelling. Upwelling होगा पानी का. Upwelling means the movement of water नीचे से ऊपर. Water moves from down to up, guys. Upwelling. Upwelling के साथ क्या है? नीचे के the nutrients from down they are carried up. Phytoplanktons they come up. When phytoplanktons they come up, there is photosynthesis, and when there is photosynthesis, वो मछली आती है चारा खाने के लिए. There is fishing during normal events. But what will happen during El Nino? There is no upwelling. Why? क्योंकि पानी वहीं खड़ा है. पानी move नहीं कर रहा. During El Nino, the water will stay here. The warm waters will stay here. They will stick to this place. क्योंकि wind नहीं है. No upwelling. Fish would disappear. Fishery would disappear. But this disappearance is only temporary. ये सिर्फ temporary है. Very, very, very important, guys. Precise mechanism that triggers El Nino. Exactly El Nino क्यों start होता है? We don't know. Okay, we have no idea. Precise mechanism that triggers it. Although we know it begins as an atmospheric event, but precisely we don't know why it is triggered. Yes, guys. Sir, वो temporary disappearance of fishing वाला वो concept बताओ. Temporary disappearance. Guys, इसको underline करो और note करो. Please note this down. You have to note it down, guys. This is the official
definition of El Nino: when the temperatures rise 0.5 degrees centigrade, नॉर्मली जो हिस्टोरिक है, जो सेट पैटर्न है, उससे अगर टेम्परेचर्स 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करते हैं फॉर कंसेक्यूटिव 3 months, okay, and this thing causes change in rainfall pattern atmospheric conditions and rainfall pattern. अगर इस टेम्परेचर चेंज की वजह से there is change in atmospheric conditions and rainfall patterns. What was change in rainfall pattern? Atacama, South America, rainfall, India, Indonesia, this region, Southeast Asia wala, there is drought in this region. This is El Nino, guys. shift accordingly, scientists officially declare an El Nino. Officially El Nino is declared, guys. Okay. I will share this screenshot also in your group for that matter, okay? Effects of El Nino Because the warm conditions, they shift from Australia towards South America, okay? Rainfall patterns also shift. क्योंकि गर्म पानी है, what will that result in? That is going to result in more precipitation, more moisture in air. This is the answer to your question. नरेंद्र सुन रहे हैं ना? हेलो हाँ जी, नरेंद्र, हाँ जी ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈਗਾ. Warm water pushes the cold water downward. Where? Here, guys. I'll use the annotated. देखो नॉर्मली अगर नॉर्मल कंडीशन क्या थी, यहाँ का गर्म पानी जो है, दिस इज पहले हम टॉप से देख रहे थे ओशन को, नाउ वी आर सीइंग ओशन वर्टिकली, स्टैंडिंग वर्टिकली लाइक दिस, ओके. नाउ द वार्म वाटर व्हिच वाज नॉर्मली पुश्ड टू दिस प्लेस, वो नहीं हो रहा पुश, ओके, दैट डजंट पुश अप. तो अगर पुश नहीं हो रहा है तो व्हाट विल हैपन इज द वार्म वाटर विल स्टार्ट पाइलिंग हियर. अब ये वार्म वाटर, यहाँ नॉर्मल कंडीशन ये थी कि जो गर्म पानी था ये आगे जा रहा था. अगर ये गर्म पानी आगे जा रहा था, व्हाट विल हैपन? अपवेलिंग विल हैपन, गाइस. साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे अपवेलिंग ऑफ वाटर होगा. अब नीचे का पानी क्या है? नीचे का पानी ठंडा है और न्यूट्रिएंट रिच है, उसमें फाइटोप्लैंक्टन है यहाँ पर. तो दैट फाइटोप्लैंक्टन इज ब्रॉट टू द सरफेस, and when that phytoplankton is brought to the surface, that increases the photosynthesis in, और सन है वहां पर, फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस होती है तो इसको चारा मिलता है, सब कुछ यहाँ पर मिलता है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ अपवेलिंग एंड मूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप. अब ये रुक जाती है बिकॉज ड्यूरिंग एन एल नीनो इवेंट, सो फिशेस वुड डिसअपीयर. अब अपवेलिंग नहीं हो रही अगर वहां पर पानी नहीं है, वहां पर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो घास नहीं है, उसका चारा नहीं है, फाइटोप्लैंक्टन नहीं है, तो थिंग्स, नो फिशिंग. इकोनॉमिक इवेंट है देखो एल नीनो का टुवर्ड्स दी, दिस इज टेम्परेरी बिकॉज एल नीनो इवेंट ऐसा नहीं है कि 6 महीने चल रहा है, साल. नो, इट इज जस्ट फॉर 1 month, दैट्स इट, फॉर फ्यू डेज फॉर दैट मैटर. उसके बाद ये चला जाता है, देन कंडीशंस बिकम नॉर्मल. व्हाट हैपेंस टू द ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड, देयर इज लॉट ऑफ रेनफॉल. अब अगर डेजर्ट में जो आपका एटेकामा है ना, पेरू है, एटेकामा चिले जो रीजन है यहाँ पर, जहां पर 4 सेंटीमीटर बारिश होती है 25 साल में, अगर वहां बारिश हो जाए तो लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कृपा की है. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. एल नीनो, ब्लेस्ड चाइल्ड, कि हमारे लिए तो दिस इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज. व्हाई? बिकॉज दे हैव रेन. that takes Fahrenheit. There was इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट इज रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्जाम, इन प्रीलिम्स आल्सो, मेंस आल्सो. प्लीज क्लियर योर अंडरस्टैंडिंग ऑन एल नीनो. एल नीनो फर्स्ट, व्हिच आल्सो रिवर्स द ट्रेड विंड्स, गाइस, ओके. इसी में ही आपका एक और टॉपिक है, ठीक है.
उसे हम कहते हैं एंजो, एंजो या एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ओके, एल नीनो तो आपने देख लिया, एल नीनो यू जस्ट सॉ। ओके, सो व्हाट इज सदर्न ऑसिलेशन नाउ? व्हाट इज सदर्न ऑसिलेशन? सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूं अभी, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नॉर्मली व्हाट इज हैपनिंग इज, जो विंड पैटर्न है, अब यहां पर एल नीनो इज ओशियानिक इवेंट, जो सदर्न ऑसिलेशन है दैट इज विंड इवेंट। सदर्न ऑसिलेशन जो SO है वो विंड इवेंट है। ठीक है, विंड इवेंट सिर्फ मोटा मोटा समझना गाइस। अब नॉर्मली इस रीजन में विंड्स, ठीक है, इस रीजन में हाउ विंड्स ब्लो, नॉर्मली कैसे ब्लो करती हैं। अब ये गर्मी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली विंड्स विल राइज, वो राइज करके ट्रेवल करती हैं टुवर्ड्स साउथ अमेरिका, और यहाँ पर आके दे कम डाउन, क्योंकि यहाँ पे ठंड है। ठीक है, यहाँ पे ठंड है, कोल्ड कंडीशन है ना, यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट है। ओके, सो दे विल ड्रॉप डाउन हियर, फिर यहां से दे ट्रेवल टुवर्ड्स अगेन टुवर्ड्स योर साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, देन दे अगेन गो अप। नॉर्मल कंडीशन इज लाइक दिस गाइस। अब जब यहाँ पर दे राइज अप, तो देयर इज क्लाउड फॉर्मेशन हियर, यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, एंड वी हैव रेनफॉल हियर। ओके, यहाँ रेनफॉल है, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर बारिश हो गया। ठीक है, यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन है, बारिश, दिस इज नॉर्मल कंडीशन गाइस, एंड वी हैव रेनफॉल हियर। ओके, यहाँ बारिश होता है, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। इसको बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। प्लैनेटरी विंड सिस्टम में ये एक और चीज है। ठीक है, लेकिन जब आपका कंडीशंस रिवर्स हो गई, ओके, वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, नाउ व्हेन द कंडीशंस रिवर्स, लेट्स now the conditions have reversed guys, now the conditions have reversed। जहां पर पहले आपका गर्म पानी था, ठीक है, वहां ठंडा हो गया, जहां पर ठंडा था वहां गर्म हो गया guys। this is South America guys। now this region has warm waters guys, this region has warm water। if there is warm water here, there will be heating होगा, तो यहाँ पर आपका winds they will rise up here, okay, and they tend to, the winds would rise here and they will travel towards your Australia and India, and they will drop down here guys, they will drop down here। that means यहाँ पर pressure condition is low pressure guys, low pressure। यहाँ पर the condition is high pressure guys। remember, अर्थ के surface के ऊपर winds travel from हाई टू लो गाइस, तो अब विंड्स जो है यहाँ पर हाई टू लो ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग टू योर रेनफॉल थिंग, हाई प्रेशर डेजर्ट कंडीशंस, हाई प्रेशर विंड्स जो है ऊपर से नीचे आ रही हैं गाइस। तो जिस भी इलाके में विंड्स ऊपर से नीचे आती हैं, नो रेनफॉल गाइस, देयर वुड बी नो रेनफॉल हियर। लेकिन बिकॉज यहाँ पर विंड्स दे आर ट्रैवलिंग अप, लो प्रेशर सिस्टम है, विंड्स ऊपर ट्रैवल कर रही हैं, इक्वेटोरियल लाइक कंडीशंस बन जाती हैं। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस हियर इज we will have rainfall here guys, here there would be rainfall guys। इस रीजन में क्या होगा, बारिश होगी, रेनफॉल होगा, लो प्रेशर सिस्टम। यानी कि जो आपका सदर्न ऑसिलेशन पहले नॉर्मल था, नॉट ओनली इसमें आपका ओशियानिक इवेंट भी रिवर्स कर गया, आपका यहाँ पर एटमॉस्फेरिक इवेंट दैट इज सदर्न ऑसिलेशन जो है वो भी रिवर्स कर गया गाइस। सदर्न ऑसिलेशन इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल रीजन में, ट्रॉपिक्स में परपेंडिकुलर पैरेलल चलता है टू द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। ठीक है, इट्स अनलाइक दी अदर जो ट्रेड विंड्स थी या हेडली सेल की बजाय, दे वर्क लाइक दिस गाइस। इसको हम सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं, सदर्न ऑसिलेशन। आई विल प्रोवाइड यू अ हैंडआउट ऑन दिस थिंग, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट नाउ। दिस इज एंजो। कई बार ये पूछ रहे थे एंजो क्या है। एंजो इज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो किससे रिलेट करता है, एल नीनो रिलेट्स टू योर ओशियानिक इवेंट, ओशन से रिलेट करता है। सदर्न ऑसिलेशन किससे रिलेट करता है, सदर्न ऑसिलेशन रिलेट्स टू एटमॉस्फेरिक
चेंजेस, कि जहां पर बारिश है वहां ड्रॉट, जहां पर ड्रॉट है वहां पर बारिश। क्यों? क्योंकि जो विंड पैटर्न था, विंड की जो मूवमेंट थी, विंड की मूवमेंट ही टोटली रिवर्स हो गई। ओके, दैट इज द बिगर पिक्चर यू शुड नो गाइस। कोई डाउट यहां पर? एनी डाउट यहां पे? El Nino is the boy child. El Nino is the boy child, guys. क्राइस्ट का लड़का, क्राइस्ट का बेटा। ओके, एंड वी हैव ला नीना ऑल्सो गाइस, ला नीना। ठीक है, ला नीना कंडीशंस। ओके, ला नीना। व्हाट इज ला नीना? एल नीनो, ये है ला नीना। ला नीना guys. Now this is the girl child. This is the girl child, guys. Okay, and what this La Nina does to El Nino, या ये इस रीजन में क्या करता है? नीना में क्या होता है गाइस? ला नीना में जो विंड सिस्टम है, एल नीनो में क्या हुआ? एल नीनो में वो वीक हुआ। ओके, अब ला नीना में क्या होता है? वो और ज्यादा एग्रावेट होता है। ला नीना में जो नॉर्मल कंडीशंस है, जो नॉर्मल कंडीशंस है विंड की, दे आर एग्रावेटेड, यानी कि ट्रेड विंड्स और तेजी से बहना शुरू कर देती हैं। ट्रेड विंड्स यानी कि जो पहले नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई करने के लिए क्या होता है? दे स्टार्ट टू बिगिन मोर फास्ट, दे स्टार्ट मूविंग फास्ट, कि ट्रेड विंड्स बहुत तेज चलना शुरू कर देती हैं। ट्रेड विंड्स फास्ट चलती हैं तो व्हाट विल हैपन इज, जो आपका ओशन करंट्स हैं वो भी बहुत तेजी से चलना शुरू कर देते हैं। ओशन करंट्स जो हैं, दे ऑल्सो बिकम फास्ट, and more warm water piles up in India and Indonesia. और ज्यादा गर्म पानी पाइल अप होता है और इंडिया में बहुत ज्यादा दूर तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि विंड्स जो हैं बहुत तेज हो गई हैं ड्यूरिंग ला नीना। ओके, बट व्हाट डज दिस मीन टू क्लाइमेटिक कंडीशंस? वेदर पैटर्न में क्या होता है इंडोनेशिया में? तो पहले तो आपका चिले, एटेकामा, व्हाट विल हैपन इन चिले एटेकामा अगर कंडीशंस नॉर्मल कंडीशन एग्रावेट हुई है? नॉर्मल कंडीशन एग्रावेट होने का मतलब है ओशन करंट जहां ठंडा वहां और ठंडा, यानी कि जो आपका ये रीजन है पेरू वाला, यहाँ पानी नॉर्मली ठंडा, लेकिन जब लानीना आता है तो ये और ठंडा हो जाता है। ठीक है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया यहाँ गर्म, लेकिन लानीना के दौरान ये और गर्म। तो व्हाट विल हैपन? what does La Nina mean to India and what does La Nina mean to South America, Chile and Peru? इसका मतलब क्या हुआ? It means more drought, more severe drought in South America, यानी कि severe drought आएगा वहां पे। La Nina, the girl child. Okay, and what happens to India? What does La Nina mean to India? अगर La Nina आता है तो उसका इंडिया पे क्या असर आता है? Flooding, more flood. more floods, more rainfall, more barish, more snowfall. And this happened, guys. This happened in 2013 and 14. La Nina event आया 2007। ये अब पता है क्या हो गया? पहले तो सिर्फ एल नीनो आता था, अब ये दोनों इवेंट्स साइक्लिक हो गए हैं। एल नीनो फिर ला नीना फिर एल नीनो। नाउ दे हैव बिकम मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर रैम्पेंट, ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं, साइक्लिक हो गए हैं। ओके, and because of global warming and climate change, they have become more frequent also, guys. They have become more frequent also. इसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा तूफान, बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है if La Nina comes during winter time. If it comes during monsoon time, it will mean extreme flooding in India. बहुत ज्यादा फ्लड, बहुत ज्यादा बारिश। Now, any doubt about El Nino and La Nina?
यस गाइस, कोई डाउट है तो बताओ। सर बाकी ओशंस पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है या कितना ऑल इम्पैक्ट? वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड सबीना, सब वाटर बॉडीज कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। व्हाट इज नॉट कनेक्टेड? एवरीथिंग इज कनेक्टेड गाइस। इवन एक सर्कुलेशन है, मैं ये आपको ना करवाऊंगा, जब एनवायरनमेंट कराऊंगा मैं आपको एक खास सर्कुलेशन कराऊंगा जिसको हमने कल भी थोड़ा सा उठाया था, दैट वाज थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन गाइस, ये जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है ना, ये एक ऐसी सर्कुलेशन है विच कनेक्ट्स ऑल द वाटर इन द ओशंस, लेकिन इसकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है। ये डीपर ओशंस में सभी पानी को आपस में जोड़ता है, ऊपर भी पानी को जोड़ता है गाइस आपस में। थर्मो मीन्स हीट, हेलाइंस मीन्स salinity. Thermohaline circulation guys, it's very slow water movement. Okay.